ایک صحابی جن کا نام ہے سواد بن غدیہ، وہ سب سے باہر نکل جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں استو سو صفوفکم سد الخلل. یہ آج نماز میں بھی دہرایا جاتا ہے، یہ میدان جنگ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے تھے. صفیں سیدھی کر لو، ٹھیک سے کھڑے ہو جاؤ، بیچ میں جو گیپ ہے اس کو بھر لو، دشمن تمہارے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے. ایک صحابی بار بار باہر آ جاتے تھے، آپ ان کے پاس پہنچے اور آپ نے کہا کہ استوی یا سواد. ایک ٹہنی آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے اس ٹہنی سے ان کے شکم پر تھوڑا سا ٹھوکر لگا کے کہا کہ استوی یا سواد، سواد آپ سب سے باہر کیوں آ جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا، حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اوجعتنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ نے تکلیف پہنچا دی، میں بدلنا چاہتا ہوں. آپ پار کی لڑائی کا معاملہ ہے، بدر میں صفیں لگ رہی ہیں، اپنا ایک ساتھی کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹہنی سے مجھے آپ نے تکلیف پہنچائی، میں بدلنا چاہتا ہوں. قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات ایمرجنسی کے تھے، لیکن آپ نے کہا یہ ٹہنی تمہارے ہاتھ میں، بدلہ لے لو. صحابی رسول نے کہا کہ میرے اوپر تو چادر بھی نہیں ہے، میں صرف لنگی پہنے ہوئی ہوں، آپ کے اوپر تو چادر بھی ہے، آپ چادر ہٹائیے تب میں بدلہ لے سکتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر گرا دی. اب کیا ہوا؟ صحابی دوڑے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے، آپ کی پیٹھ اور آپ کے پشت کو چومنے لگے. ارے یار سنو، غور سے سنو، غور سے سنو یار، غور سے سنو ذرا، غور سے سنو، ارے خبردار غور سے سن لو بھائی. ایسا بول رہے ہیں کہ یہ دیکھ کیا ہے، کل رات میں جا کے دیکھ کیا ہے، صبح میں بول رہے ہیں. سنیے ذرا غور سے سنیے. جی 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 جناب. صحابی دوڑے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے، آپ کی پیٹھ اور آپ کے پشت کو چومنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بدلہ لینے آئے تھے یا کیا کر رہے تھے؟ صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے کہ آج کا دن آر پار کی لڑائی کا دن ہے، آج جو کامیاب ہو جائے اسے جنت میں جنت الفردوس ملے گی. میری تمنا ہے کہ آج میں کام آ جاؤں، شہید ہو جاؤں، لیکن اس سے بڑی میری تمنا یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کے دربار میں اس انداز سے ملوں کہ سب سے آخری ہستی جس سے میرا جسم لگا ہوا ہو آپ کی ذات گرامی. دوستو یعنی جو ہے اچھا مجھے یہ بتائیے عبدالحمید صاحب کہ جو ہے وہ پیارے آقا نے جو ہے اپنی چادر ہٹا دی تو لنگی بھی ہٹا دی، چادر ہٹا دی تو مطلب اور پلٹ کے کھڑے ہو گئے وہ. نہیں بھائی، وہ صحابی کے پاس جو ہے جو چادر بھی نہیں ہے، وہ لنگی، یعنی تو لنگی بھی ہٹا دی، وہ چادر بھی ہٹا دی، دونوں چومنے لگے ایک دوسرے کو. یہ ان کو چوم رہے ہیں. وہ صحابی نے تو لنگی ہٹا دی، لیکن حضور نے بھی اپنی چادر گرا دی، وہ بھی کپڑے اتار دیے نا انہوں نے. اچھا اس کے بعد چوما چاٹی چل رہی ہے، اور وہ جا کے چمٹ رہے، اور کہاں چوم رہے؟ پشت کو چوم رہے وہ. اچھا یہ تو جو ہے بالکل لائیو جو ہے یہ تو جاٹوں والا معاملہ چل رہا ہے. جاٹوں نے بڑا دگی دیا ہوا ہے. سجل جی، اور ایسا بول رہے ہیں کہ یہ رات میں جا کے دیکھ کے آئے تھے، سویرے آ کے بول رہے ہیں کہانی. کیا کہانیاں ہیں یار، 7 اکتوبر 2022 دلی اوکھلا ایک دم بڑے شہر میں ایسے. اب آپ دیکھیے کہ اس میں جو ہے ان کے یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے آڈینس میں لیکچررز بھی ہوں گے، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، اور جو ہے پروفیسرز بھی ہیں، کیا کیا ہوں گے. یہ سارے لوگ بیٹھ کر ایسی فضولیات، ایسی واہیات باتوں کو سن رہے ہیں، اور مجال ہے کہ کوئی اٹھ کر کھڑا ہو کر پوچھے کہ بھئی آپ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا ثبوت کیا ہے، بھئی کیا دلیل ہے آپ کے پاس، کیا ایویڈنس ہے اس کا؟ کوئی نہیں پوچھتا، کچھ بھی نہیں. ملا نے جو کہہ دیا بات ختم. اچھا ملا نے کہہ دیا بات ختم. آج کے اتنے انجینئرز کے، ڈاکٹرز کے، جو بھی لوگوں کے 2 گھنٹے ویسٹ کر رہے ہیں، وہ کس لیے کر رہے ہیں وہ لوگ کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا. سچ والا جی، ایک سوال آیا ہے ہمارے درشک کا، یہ پشت کیا ہوتا ہے؟ پشت نہیں ہے، پشت ہے. پشت کہتے ہیں پچھواڑا. پچھواڑا پچھواڑا جو ہے 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک جو ہے بالائی اور ایک جو ہے سفلی، یعنی ایک نیچے والا پچھواڑا ہے، ایک اوپر والا. اب یہ ڈیٹیل نہیں بتائے گی کہ پچھواڑا جو ہے اوپر کا تھا یا نیچے کا تھا. جی پیٹ کو اور پشت کو بولے نا. اب اصل میں پیٹ ہے وہ، اب ظاہر بات ہے اب اس میں سبھی کچھ آ گیا نا بھائی. جی پیٹ کو اور پشت کو چومنے لگے. جی اور ساتھیوں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، ٹوٹ کر کے محبت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں رکھا، اور ظاہر میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر دی. مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کیا. احد کے میدان میں جب یہ خبر افواہ عام ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو لوگ پریشان ہو گئے.
खवातीन घरों में परेशान हो गई, लेकिन वो हस्ती जिससे बेहतर और जिससे बहादुर और जिससे बढ़िया कोई कायद और कोई गोया कि फौजी और सरबराह इस दुनिया में नहीं गुजरा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंचाई पर पहुंचे और आपने कहा, अना नबी ला कदिब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ। सहाबे कराम इकट्ठा हुए और फिर उहद का पासा पलट गया। लेकिन मदीना में तो अफवाह गर्दिश कर रही थी। एक खातून बनी दीनार की, वो बाहर आ गई रोड पर और वो सचवाला जी, बल्कि ओहद में तो एक साहब ने इनको देख लिए थी कि ये जिंदा है, तो ये उसको बोल रहे कि अबे मत बोलो, अभी मत वो मर गए समझ के जा रहे, अभी मत बोलो मैं जिंदा हूँ, मत बोल, मरवाएगा क्या। अली भाई आए हैं। जी आप कंटिन्यू करें, बाद में हम बात करते हैं, कंटिन्यू करें, बहुत जबरदस्त बात चल रही है, कंटिन्यू करें, बाद में हम जबरदस्त चल रहा है ये। जी तो काफिलों से पूछती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। एक काफिले ने कहा कि तुम्हारे अब्बा शहीद हो गए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। दूसरे काफिले ने कहा कि तुम्हारे भाई शहीद हो गए, उन्होंने कहा कोई हर्ज नहीं। तीसरे काफिले ने कहा कि तुम्हारे शौहर शहीद हुए, उन्होंने कहा कोई हर्ज नहीं। आगे बढ़ती गई वो, जब उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नजरों से देख लिया तो उन्होंने कहा कुल्लु मुसीबतुन जललुन बादक या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जललुन बादक या रसूलल्लाह, जी जललुन, जी कुल्लु मुसीबतिन जललुन, यानी हर जिन्हें तुम्हारे चेहरे पर अपनी जो है हर तरह की मुसीबत कुर्बान, सब कुछ हम सह लेंगे या रसूलुल्लाह, बस आपका जो है मुखड़े मुबारक। क्या बात है यार, क्या बात है, कितनी गैर फित्री गैर इंसानी बात है। जललुन बादक या रसूलल्लाह, क्या बात है। उनको बोला जा रहा है कि तुम्हारे बाप शहीद हो गए, तो बोले कोई बात नहीं, कोई बात, तुम्हारे शौहर शहीद हो गया, भाई शहीद हो, कोई बात। कितनी गैर फित्री बात है, ऐसा कैसा हो सकता है। यानी ये कहानी है भाई, देखें ये असल में ये वो कहानी, मैं आपको मैं बताता चलूं कि ये कहानी किसने लिखी, ये इब्ने हिशाम ने लिखी। कब लिखी? अपने वक्त के 250 साल के बाद। क्यों लिखी? क्योंकि जो है अब्बासियों ने इस अपने मनगढ़ंत नबी को घड़ने के बाद इस तरह के कहानियों की जरूरत थी, इसलिए लिखवाई गई। अब्बासियों की निगरानी में ये पॉलिटिकल इनकी पॉलिटिकल नीड थी, नीड उनकी सियासी जरूरत थी, इस तरह से ये लिखवाया गया। ये मनगढ़ंत बातें हैं, इसका किसी के पास कोई सबूत नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं, सारी बातें मनगढ़ंत है, सारी बात। सचवाला जी, इसमें मैं बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर ये चीज ना होती ना, तो शायद अगर अब्बासी ये सब ना करते, अब्बासी हुकूमत, इवन फातिमीद हुकूमत भी थोड़ा सा मिला लें आप, अगर ये हुकूमत ना करती ना, तो शायद इस्लाम इराक में ही खत्म हो जाता, उससे आगे बढ़ता ही नहीं। ये इस्लाम इतना फैलने की वजह ये है कि इसमें सारी बातें शामिल की गई। यानी इसमें असल कारनामा अब्बासियों का है भाई। मैं तो वाकई मैं दंग रह जाता हूँ। मैंने अब्बासी इस मामले में इतने जो है वाकई, यहाँ मैं इस्लाम की कोई क्वालिटी मुझे आज तक नजर नहीं आई, लेकिन क्वालिटी नजर आई तो अब्बासियों के उनका दिमाग जो चला है ना इस मामले में। एक शेर कुछ और है, लेकिन मैं उसको यहाँ पर अपने लफ्जी तज़मीन के साथ मैं कुछ लफ्ज बदल कर वो शेर ऐसा कहता हूँ। वो शेर ऐसा है कि गैर मुमकिन है कि इस्लाम की गुत्थी सुलझे, गैर मुमकिन है कि इस्लाम की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। वाह क्या बात, बहुत सोच के उलझाई, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। ये इस गुत्थी को इस तरीके से उलझाया गया है कि इस गिट्टियों में लोग अभी तक भी जो है हैरान है, गलतान पेचान है, अभी तक। आज भी वो लट्टू उसी स्पीड से घूम रहा है। ये कमाल है, ये कमाल इस्लाम का नहीं है, इस्लाम की कोई अट्रैक्शन नहीं है, इस्लाम ये सारा कमाल अब्बासियों का है, अब्बासियों का है। उन्होंने जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया, ये है कमाल। अगर कमाल होता तो पैगंबर इस्लाम का कोई कमाल होता, कुरान का कोई कमाल होता, तो मक्का में जो कि कुरान की जबान को जानने वालों के सामने खुद साहिब कुरान कुरान पढ़ पढ़ कर 13 साल तक सुना रहा है, वहां कितने लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं? कुछ रिवायतों के मुताबिक तो सिर्फ 48 लोग हैं, किसी में कहा गया है कि 60-65 लोग हैं, किसी में मैक्सिमम क्या है 86 लोग, और उनमें भी मेजॉरिटी किसकी है? मेजॉरिटी है वहां पर पिछड़े हुए लोगों की। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसका मतलब भी है कुरान का कोई इफेक्ट नहीं है, कोई भी इफेक्ट नहीं है, कोई भी इफेक्ट नहीं। जी जनाब, देख लिया तो अब सारी मुसीबतें हेच है मेरी नजर में। ये जो वारफ्तगी थी, ये जो मोहब्बत थी, ये जो टूट करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग चाहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो चीज हमारे अंदर पैदा क्यों नहीं होती? हमें बहुत सारी चीजों से मोहब्बत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है, जो मोहब्बत मतलूब।
मोहब्बत होगी तो आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेगा, मोहब्बत होगी तो आपके रास्ते पर चलेगा, मोहब्बत होगी तो आपके दीन के लिए कुर्बानियां देगा, मोहब्बत होगी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे दीन इस्लाम के लिए स्ट्रगल किया था और अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन को नाफिज किया था, उसके लिए उसके सीने में आग लगी हुई होगी। ये मोहब्बत झूठी मोहब्बत है जो आदमी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने और आपके रास्ते पर चलने के लिए आमादा ना करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का पहला तकाज़ा ये है। न्यूज़ नेशन पे आ जाओ भाई जी, मौलाना जरा मेरे से बात कर लो जी। नहीं, मैं पैनल के सभी लोगों से पूछूंगा। इसी टोन में आप वहां पर बात करना, मैं आपके साथ हूँ और मैं भी आपकी हर बात की जो है गवाही दूंगा। हाँ, आप जो कुछ कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन ये बातें न्यूज़ नेशन, आप लाइव जो है आप इंडिया टीवी पर आकर ये बातें कहें एग्जैक्टली इसी टोन में, इसी अंदाज में कहिए, कह सकते हैं आप? ट्रेनिंग कैसी है सच वाला जी? ट्रेनिंग कैसी है? मस्जिद के अंदर तो बैठे ये बात नहीं कि भारत में जो मस्जिद के बाहर जो है कहकर इस तरह की बातें नहीं करेंगे। जी जनाब, दरूद व सलाम भेजें, कसरत से भेजें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो मुझ पर एक मर्तबा दरूद व सलाम भेजेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर 10 मर्तबा सलामती और रहमत की बारिश नाजिल फरमाता है। दोस्तों और साथियों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जब उनका नाम आए तो एहतराम के जज्बात उमड़ने चाहिए। जब आपका नाम आए तो आप पर दरूद सलाम भेजना चाहिए। जब आपका नाम आए तो हमारे रहबर का वो रास्ता हमारे सामने वाज़ेह हो जाना चाहिए जो पूरी जिंदगी उन्होंने किया है, जिसके बारे में कुरान कहता है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 54 और जो है 9 का जो है जिक्र नहीं कर रहे हैं, 54 और 9 ये भी तो जो है उनका उसवा है ना, ये भी तो रोल मॉडल है कि वो जब 54 के हैं तो 9 साल पर चढ़े थे जी। ये भी तो आमीन कहा, सहाबा ने कहा नई बात है हमारे लिए, तो आपने फरमाया जिब्रील अमीन आए, 3 चीजें पेश की और कहा कि आप इसकी तस्दीक फरमा दीजिए। उसमें एक चीज ये भी थी कि मजलिस में जब मेरा नाम आए और कोई शख्स मुझ पर दरूद ना भेजे उस पर अल्लाह की लानत हो, उसकी फटकार। दोस्तों साथियों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हक है, जो कोई जो है मजलिस में मुझ पर दरूद ना भेजे। ऐसे दरूद क्या है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, ये है दरूद। जो कोई ये ना करे, जो कोई ये ना कहे, उस पर फरिश्ते भी लानत करते हैं, वो कंजूस कहा जाता है, उस पर जो है ये लानतें, उस पर जो है कर्स है, बद्दुआ है उस पर। सचवाला जी, अगर मैं आपके नाम के साथ हर दफा जब मैं आपका नाम लूं और उसके साथ में अगर ये कहना शुरू कर दूं कि अल्लाह आपको सेहत दे, जैसे कि अगर मैं कहूँ मैं ना सचवाला जी की स्ट्रीम में था, अल्लाह उनको सेहत दे, तो सचवाला जी ने अल्लाह उनको सेहत दे एक बात की कि ना मोहम्मद साहब जो थे ना वो तो बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी थे, तो सचवाला जी की ये बात अल्लाह उनको सेहत दे, तो वो इस बात से मैं अग्री करता हूँ। सचवाला जी के साथ खड़ा हूँ मैं, अल्लाह उनको सेहत दे। अगर मैं इतनी दफा एक सेंटेंस में अरे यार मैं आईसीयू में नहीं हूँ भाई। हाँ, एग्जैक्टली मेरा पॉइंट ये था, मेरा यही पॉइंट है कि जिस आदमी को आप एक दफा अगर किसी को बोल रहे हो कि उसको इसका मतलब है उसको जरूरत है, उसकी बड़ी हालत खराब है, ये नहीं, उसकी बात ये है कि उसके इतने गुनाह हैं कि अब लोगों के जो है वो लोगों को हर एक को एक साबुन दे दिया उसने, ले यार मेरे जो है गुनाहों को तू घस घस के धोते जा, इतने दाग लगे हैं, कितना गुनाहगार इंसान है जिसको इतने सलाम की जरूरत है कि हर शख्स जो है मेरे दामन पर जो है अपने साबुन से घिस घिस कर धोता रहे। एक्चुअल बात ये है। लेकिन इस बात से मालूम है आपको ये हदीसें किसने गढ़ी? अब्बासियों ने भाई। ये सारा कारनामा अब्बासियों का है। यानी ये सोच, ये जो है ये मेंटालिटी किसकी है? ये अब्बासियों की है। यानी मतलब उन्होंने जिस नबी को घड़ा है उस मनगढ़ंत नबी को जो है सच्चा साबित करने के लिए या उसकी बातों को लोगों पर जो है मनवाने के लिए इस तरीके कार को अपनाया गया। और वो खराब पॉलिटिशियंस थे ना। देखें खराब पॉलिटिशियन कौन होता है? जो लॉ बनाए खुद अमल ना करे। उन्होंने खुद भी अमल नहीं किया जो वो बोल के गए हैं। वो खुद भी बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार के चले गए, हम पे अजाब डाल के। नहीं जनाब, ये पॉलिटिशियन कहाँ थे? वो मुतलकुल इनान शहींशाह थे, मुतलकुल इनान जो है डिक्टेटर्स थे। जी हाँ, असल बात ये है। हाँ, उन्होंने अल्लाह और रसूल के तुगरे को इस्तेमाल किया, सामने साइन बोर्ड रखा, पीछे अपनी मनमानियां धांधलियां इनकी जारी रही। ये आपने मौलाना मौदूदी साहब की खिलाफत और मलूकियत किताब पढ़ी है? जी हाँ मैंने पढ़ी है। क्या किताब है जी, क्या किताब है? पुराना वर्जन पढ़ा है या जो अभी नया जो छोटा होके आ गया है? नहीं, पुराना पढ़ा था मैंने। जबरदस्त सर, क्या किताब है सर। उसमें आपको पता चलता है कि कब खिलाफत जो है वो एक बादशाहत में बदल गई। जी हाँ, सही बात है।